सुप्रिया, थोड़ा सा मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, आप व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जो एक्सपीरियंस था वो क्या था और क्या अचीव कर पाई थी आप? Okay, first of all, thank you so much, Doel, for inviting me to your show. I'm really feeling it's a privilege to me. Secondly, coming to this thing, breastfeed का ऐसा था कि I became diabetic when I conceived. Gestational diabetes. And I was on insulin for the last 4 to 5 months. 3 times I had to take insulins. And besides that, I believe because when you are working and you are a mother and you are doing so many things at the same time, ऐसा कई बार होता है कि आई डोंट नो शायद स्ट्रेस की वजह से वो इट्स नॉट विद द डाइट, बिकॉज डाइट तो मेरा इट्स ऑलवेज बीन वेरी बैलेंस डाइट, लाइक इट्स द शुगर वाज नॉट विद द डाइट, बट देन आई बिकेम डायबिटिक एंड जब मेरा बेबी हुआ सो इट वाज लाइक बिकॉज जस्ट आफ्टर द 8 month वी हैव टू डिलीवर बिकॉज आई वाज डायबिटिक वो, एंड देन वी प्लान द सर्जरी एंड सर्जरी हुआ. उसके बाद कैसा हुआ कि मुझे ब्रेस्ट फीड आता ही नहीं था. And this was my first experience. And when I used to say tell this to my husband, he said कि my mom-in-law says कि नहीं सबको होता है. This is just a very basic thing. It happens with everyone. You are just getting over conscious about it. And so initial days तो I keep on trying कि हो सकता है because it's my problem. I started eating too much, thinking that कि उसके बाद में feed अच्छे से आएगा. बट देन वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तो सिर्फ वेट ही बढ़ रहा था. एंड देन but you know every person has a different experience with breastfeed. I went to even my gyno also. I was telling her, but even she was like, no, we can't give you other supplements to जिससे आपका milk improve हो. वो भी नहीं, she didn't give me that, and she said no, you just keep on trying. So ये keep on trying में it was almost 4 months. And those 4 months में बीच में कैसा हुआ, because I was putting lot of pressure on me. मैंने बहुत सारा खाना स्टार्ट किया, मैंने किसी ने बोला ये खा लो तो इससे ठीक हो जाता है, किसी ने मेडिसिन सजेस्ट किया, आई ट्राइड इवन दैट आल्सो, जिसकी वजह से ना आई डेवलप्ड दैट ब्रेस्ट engorgement. And it was again a very torturous period for me because मेरा बेबी 1 month का था and मुझे breast engorgement हो गया, and जिसकी वजह से I have to go for a surgery. And 14th of August को we have to operate it, क्योंकि उसके एक वीक पहले when I went to my gyno, I said कि प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि कुछ अंदर lumps बन रहे हैं. She said कि नहीं, it will be all right, you just I will give you some medicine, you just take that medicine and after that you will be all good. बट दैट हुआ क्या, वो मेडिसिन मैंने आई ट्राइड फॉर अ वीक बट वो हुआ नहीं, वो और ज़्यादा एकदम ही ऐसे पक गया. एंड देन इट जस्ट बर्स्ट एट माई होम ओनली, एंड देन आई वेंट टू इमीडिएटली टू द डॉक्टर एंड शी सेड नो, वी हैव टू ऑपरेट इट. एंड ऑपरेशन ऐसा था कि 14th, लाइक व्हेन यू गो टू बिग हॉस्पिटल्स, आपको प्रॉपर एक प्रोसेस में फॉलो करना होता है. यू हैव टू, पहले आप एडमिट होते हो, फिर आपका सर्जरी प्लान होता है. एंड बिकॉज वो ऑलरेडी हाफ ऑफ बस्ट हो चुका था, वी हैव टू ऑपरेट इट इमीडिएटली बिकॉज आई वाज डायबिटिक ऑल्सो. सो शी जस्ट गेव मी अ पेन किलर and I was in my OT, 2 doctors were holding my hand, 2 were holding my legs, and without anesthesia I had to get it operated. So it was like the feeling of hell, I felt everything. So it was a very very torturous period. Even if someone says कि अभी दोबारा I can't even think of because उसके बाद मेरा इतना torturous था, and with that putting उसके बाद में you cannot bandage it, you have to keep it open. आप उसमें सिर्फ हीलिंग के लिए टू कीप इट ओपन. एंड उसमें कैसा होता था कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू ब्रेस्ट फीड माय चाइल्ड, वो ऊपर से भी आ रहा था, इट वाज लाइक सो टॉर्चरस. एंड देन आफ्टर 4 months, इस दौरान भी नोबडी गॉट टू नो दैट दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग. स्टिल आई वाज टेलिंग दिस टू माय फैमिली कि आई फील दैट मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं आता है या कम आता है. So at least we should consult with someone else, not with the same one, because she is not understanding the same situation. Then in 4 months my baby became like malnutrition kind of. He was very fair when he was born, and by the time 4 months came he was very skinny. So we went to a family function where one of my cousins, her father, he's a doctor and he's 70 years old, he's a very good pediatrician. So when he looked at my son, he said, ये तो तुम्हारा बच्चा है तो कुपोषण का शिकार है. Then he called my mother-in-law. She said कि she is asking you since last 4 months, मुझे feed नहीं आ रहा, then why you have not taken her to somewhere else?
and then immediately he started with the top feed. And when he gave my son the top feed for the very first time, it was like, before that I tried everything, breast pump, electric pumps, hand pump, I tried everything, from whatever way I can feed my child. But then it could not happen, and when he gave the top feed, it was like almost we gave him 150 ml. And you'll not believe, just in 2 minutes he finished all. And then that day he slept like anything, and before that, me and my son, like whole night I used to take him like this, and I was like sitting on the bed, पूरे रात हो जाता था, वो सोता नहीं था, मैं भी नहीं सो पाती थी. It was like very very torturous. So I believe कि sometimes breastfeeding is very important, I believe. बट मुझे ऐसा लगता है हर पर्सन का हिस्ट्री एंड वो अलग होता है. तो समटाइम इफ समवन सेज ना, सो देयर हैज टू बी सम कुछ एक मेजरमेंट होना चाहिए जिससे ये पता चले दैट दिस फीमेल ये इसका बच्चा ठीक से खा रहा है, पी रहा है, लाइक दैट. सो प्रियाज एक्सपीरियंस, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. और जब वो बोल रहे थे मैं समझ पा रही थी कि कहाँ कहाँ इंटरवीन करके शी कुड हैव गॉट द राइट सपोर्ट. सो आई विल जस्ट से कि जैसे उन्होंने कहा कि कोई मापदंड नहीं होते क्या, इसके मेजरमेंट्स नहीं होते कि बच्चा इस स्टेज तक ना आए, तो डेफिनेटली होते हैं. कि फर्स्ट हम लोग लाइक व्हेन यू फीड फ्रॉम फॉर्मूला और एनी अदर थिंग, आपको पता है कि बच्चा 30 ml ले रहा है, 60 ml ले रहा है. व्हेन यू डायरेक्टली फीड द चाइल्ड, आप नहीं समझ सकते बच्चा कितना फीड ले रहा है. तो उसका एक मेजरमेंट होता है कि वेट नैपीज. सो आफ्टर 6 days ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, 6 wet nappies इज वॉट अ मदर्स should check. It is 100% more than that. Nappies अलग game है altogether, but 6 wet nappies और 3 to 4 wet heavy diapers. This is the measurement कि बच्चे को enough मिल रहा है. अगर enough मिल रहा है तभी pee and poop is happening. So this is one criteria. Second, not every day but over a week by week उसका वेट तो नहीं लूज हो रहा है. आपको sunken cheeks दिखेंगे या डार्क सर्कल्स दिखने लग जाएंगे, ये सब पेल स्किन दिखेगी, चबी रेड वाइट स्किन नहीं दिखेगी. तो दीज आर द थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को इनफ नहीं मिल रहा है. सेकेंड, लाउड क्राइज, मतलब बच्चा समटाइम्स स्टार्ट रिजेक्टिंग मिल्क ब्रेस्ट. एंड ऑल्सो उनकी जो नॉर्मल रोना और भूख से रोना बिल्कुल 2 अलग रोना है जो एक मदर या फैमिली समझती है. तो आपको ये सिग्नल्स है टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द टाइम यू रियली नीड टू टेक हेल्प. And when it comes to help, I would say कि she had this feeling कि something is wrong but she didn't get the right support. So don't stick to your all the time doctor. Change doctors, seek support, ask कि कोई better doctor है जो मेरी ये problem solve कर सकता है. Also go by your mother's gut. Mother's gut is the strongest feeling in the whole world. अगर gut कह रहा है something is wrong, please take actions on that. So sorry this happened, but let's try कि दूसरे mothers के साथ ऐसा ना हो. प्रिया, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था उसमें मुझे ऑब्जेक्टिवली जब मैंने पूरा सुना दोबारा से, मुझे लगता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जो प्रिपरेशन टुवर्ड्स ब्रेस्ट फीडिंग है ना, वो शायद तुम्हारी लैक क्योंकि अर्ली डिलीवर हुई तो तुम प्रिपेयर नहीं हो पाई. और उसके बाद आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन फ्रॉम अदर्स. यही सबसे, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग. स्ट्रेस होगा तो फीड नहीं आएगा, फीड नहीं आएगा तो स्ट्रेस होगा. और ये स्ट्रेस की शुरुआत ना सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती है, हार्मोनली भी इतना इम्बैलेंस रहता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है. और उस वक्त ऑब्जेक्टिवली किसी थर्ड पर्सन, सहेली, लैक्टेशन काउंसलर, ऐसे टाइप के लोगों के साथ बात करना बहुत जरूरी है. आई विश तुमने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई होती इस डिटेल में, जो कि मुझे पता नहीं था. एंड कहते हैं ना, लोग सोचते हैं कि औरतें तो कहीं भी कुछ भी डिस्कस करने लग जाती हैं, आपस में कनेक्ट. आई थिंक वी फीमेल्स हैव दिस कनेक्ट एंड ये कनेक्ट को यूज करना चाहिए. जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये सबको होता है, लाइक फॉर समबडी हु इज एज श्योर एज मी, मैं लाइफ में बहुत चीजों को लेके बहुत श्योर हूँ, बट मुझे ब्रेस्ट फीडिंग के अराउंड बोथ द टाइम ये प्रॉब्लम लगती थी. मुझे हमेशा लगता था कि शायद द फीड इज नॉट इनफ. मुझे भी लगता था, लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई. सेकेंड टाइम अराउंड इट वाज मच इजियर. सो यस, आई थिंक सेकंड टाइम इट्स ऑलवेज इजियर. यस, अब मैं तो कहती थी कि वो डक्टिंग बन चुकी है, प्लम्बिंग करी हुई है, इसलिए इट गेट्स इजी. बट या इट इज इजी. बट यस, ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए. और प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन आपको टाइमली कर लेना चाहिए. लास्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ के लिए मत छोड़ो. यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन.
एंड हो गया है तो भी हैव योर पार्टनर, हैव योर फैमिली सपोर्ट यू बाय कॉलिंग समबडी फॉर यू टू सीक प्रोफेशनल गाइडेंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू रियली थिंक कि उस वक्त, मुझे तो ऐसा लगता है कि उस वक्त अगर कोई प्रॉपर काउंसलिंग कंसल्टेशन वगैरह मिलता तो आपको ये दिक्कतें नहीं आती. सो अगर आपने एक सेकेंड बेबी प्लान किया होता तो वुड यू हैव कंसल्टेड समबडी बिफोर हैंड? आप क्या अलग तैयारी करते उस वक्त? See, after my first experience, तो मैं already pro हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है. So now in fact I can guide others also. Of course, मतलब counselor मैं, if this time if I plan for pregnancy, I would definitely take, मैं 2-3 लोगों से opinion लूँगी. जो भी कुछ, if there are any test, तो मैं वो टेस्ट भी कराऊंगी. एंड इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू प्रिपेयर माय बॉडी माई सेल्फ, तो मैं पहले से वो भी करूँगी. बिकॉज आई नो कि विद डायबिटीज़ या विद आई थिंक बहुत से लोगों को थायराइड हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, एंड विद सर्टन अदर बॉडी प्रॉब्लम्स भी हमारा फीड इफेक्ट होता है. सो आई बिलीव कि काउंसलिंग एंड टेकिंग अदर सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. बताना, जब ये प्रेगनेंसी की जर्नी और ब्रेस्ट फीडिंग, इसके वक्त वेट गेन रिलेटेड कितना तुम्हारे दिमाग में चलता था कि मेरा वेट ज़्यादा ना बढ़ जाए, ब्रेस्ट फीडिंग से मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा तुम्हें लगता था? सी ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मेरा जो लास्ट वीक में जो वेट बढ़ा वो मुझे बहुत स्ट्रेस देता था, क्योंकि आई वॉज डायबिटिक एंड उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली आपका वेट लास्ट उसमें बढ़ता है. बट इन आफ्टर माई बेबी वॉज बॉर्न एंड बिकॉज आई हैड द प्रॉब्लम विद द ब्रेस्ट, तो वो पता नहीं कहाँ चला गया था. इट वॉज नेवर इन माई माइंड. सिर्फ एक ही चीज़ माइंड में थी कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से, ही शुड बी हैप्पी, वो ठीक से सो जाए, उसने ठीक से खाया है, वो ही पूरे टाइम लाइक इट्स ऑलवेज देयर इन योर माइंड, बिकॉज आप खुद को तो भूल ही जाते हो. एंड आई बिलीव कि इसी साल भर बाद भी आप कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो ना. तो वेट लॉस इज नॉट, बिकॉज आई गेन ऑलमोस्ट 20 kgs during my pregnancy and after that I lost 22 kgs. तो वो मतलब it's not like I think anyone can do that. तो feeding is the main thing which is there in my mind. आपने मेंशन किया प्रिया कि आप नहीं सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड कर पाई आपके सन को, तो अराउंड दिस आपको क्या लगता है कि इम्यूनिटी, जो कहते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं, तो आपको ऐसा फील हुआ? नहीं, ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फेड बेबीज ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट ऐसा मैं पर्सनली, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम, आई कुड नॉट डू दैट. तो टॉप फीड के साथ में जो बेस्ट मैं अपने बच्चे के लिए कर सकती थी दैट आई हैव डन. एंड मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगता कि मेरा बच्चा थोड़ा भी कमज़ोर है. इनिशियल मुझे ज़रूर लगा कि उसको सर्दी खांसी बहुत फ्रीक्वेंटली होता था, कि ज़रा वेदर चेंज हुआ तो सर्दी खांसी, बट आई थिंक वो कई बार मदर फीड पे भी बच्चे हो ही जाता है. मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे टॉप फीड पे हैं वो बहुत कम. सी इट ऑल डिपेंड ऑन आपके घर के एनवायरनमेंट पे, आप कैसे प्रिपरेशन करते हैं. एंड देयर आर मोर अदर हेल्दी ऑप्शंस ऑल्सो. अगर एक चीज़ कम है तो देयर आर लाइक, बोलते हैं एक रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते खुलते भी हैं, तो उस तरह से मदर हैज़ टू प्रिपेयर फॉर बेबी.